Hello everyone. In this episode of the Case Pod, we have Uday here with us. Uday is currently pursuing his bachelor's in commerce from SGTP Khalsa College and he has won several case competitions. शुरू में केस कंपटीशन की लिस्ट मांगी थी कौन कौन से जीते हैं तो 12-15 कॉम्पिटिशन्स भेज दिया था एंड एसआरसीसी में एक और फिर स्टीफेंस डीआरसी किरोड़ीमल आई एम अहमदाबाद में नेशनल फाइनलिस्ट पता नहीं बहुत सारे केस कॉम्पिटिशन्स जीत रखे हैं. सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस बिन केस कॉम्पिटिशन्स में? It has been really good. Like I met a lot of new friends, learned a lot of new things, and overall बहुत मजा आता है. Very good. So this podcast is particularly about a case competition which he won at SRCC. The competition was named Concilium 3.0 and it had more than 7,500 registrations. So what was the competition about there? Particularly the competition had two parts. In second round, we were given a case that was more oriented towards management and strategy consulting. And for the final round, it was more about a kind of policy making competition and policy consulting. Second round में market क्या था? Second round में particularly we were given a case जिसमें एक दो founders है. They have expertise in food and logistics industry. And उन्हें enter करना था quick grocery deliveries similar to Zepto and Blinkit. And we were given a hypothetical competitors list and a hypothetical case कि इनके ये pain points है industry के and ये इनके expertise है like the founders के. So we analyzed the case and proposed a solution key should the company enter the market or not. So what was the strengths that the founders had? So particularly there were two founders. One of the founder was had expertise in inventory management, and second had expertise in delivery management, like streamlining the delivery process. So and from these two strengths, we particularly got to know that yeah they can enter the market because हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स देखा लाइक डंजो के, ब्लिंकिट के, जेप्टो के एंड व्हाट वी थॉट कि अगर इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो यू शुड फोकस मोर ऑन यूजर कन्वीनियंस. So we'll majorly focus on the round 3 in this episode. Round 3 क्या था? So round 3 was the final round. इसमें हमें केस मिला था particularly we were given a case कि we have to develop a 3-year strategy to flatten all the landfills of Delhi. There are particularly 3 landfills. There are Bhalaswa, Ghazipur and Okhla landfills. And we have to develop a policy, a strategy कि 3 साल में उसे कैसे flatten कर सके. Landfill अभी problems क्या आते हैं landfills में? So particularly landfills से there are many issues. Particularly landfills में waste के decomposition से lot of methane gas produce होती है. That is subjected to a lot of accidental fires, and methane is also a greenhouse gas, so it contributes to pollution. Another problem is कि जो decomposition से एक liquid produce होता है जिसे leachate बोलते हैं, उससे ground water pollute होता है and soil pollute होता है. Also जो आसपास के जो communities जो live करते हैं landfill के आसपास बहुत सारी diseases and foul smell, especially during rainy season बहुत issues होती है. ये अभी क्यों नहीं कर पा रहा waste management? MCD? Particularly we found out कि दिल्ली का जो 50% वेस्ट जनरेट हो रहा है वो लैंडफिल में डंप हो जा रहा है. दैट इज नॉट बीइंग प्रोसेस्ड और रिसाइकल्ड जो हो सकता है. सो दैट इज वन ऑफ द इशू. एंड अनदर कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस उतना है नहीं टू कोप अप विद द अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट इज बीइंग डंप्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन दिल्ली. सो पर्टिकुलरली वी एनालाइज्ड 2 reasons for the landfill problem in Delhi. We categorized it as behavioral and infrastructural. Particularly infrastructure जैसे मैंने बोला कि जो डेली वेस्ट जनरेट हो रहा है उसे प्रोसेस करना एंड जो ऑलरेडी वेस्ट है लैंडफिल्स में उन्हें लेगेसी वेस्ट बोलते हैं जो ऑलरेडी लैंडफिल्स में है कई सालों से उसे एक्सकेवेट करने का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी है नहीं एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है. और बिहेवियरल में हमने देखा कि जो दिल्ली इट्स जनरल इंडिया में कि लोग का परसेप्शन रिगार्डिंग टू वेस्ट इज नॉट वेरी गुड. दे डोंट फोकस मोर ऑन रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग द वेस्ट, यूजिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. सो उससे द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड दैट पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन ऑफ दिल्ली इज क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स, पर्टिकुलरली इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया. कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होती है? सो पर्टिकुलरली जो वेस्ट सेग्रीगेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है. एक्चुअली वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स
सो पर्टिकुलरली हाउस होल्ड्स में क्या होता है, लोग एक ही डस्टबिन में सारे वेस्ट को डंप कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल ऑल्सो एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल एज वेल, और फिर उसको मैनुअली सेग्रीगेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है जब अमाउंट में वेस्ट जनरेट हो रहा है। पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्टेशन वाले इशू में, ठीक है आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बट दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस इट। अलग अलग वेस्ट के अलग अलग प्रोसेसमेंट होता है, लाइक नॉन बायोडिग्रेडेबल्स में कंबस्टिबल्स होते हैं जिसे बर्न कर सकते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं जिसे रीमोल्ड कर सकते हैं या अलग चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, लाइक रोड बिल्डिंग एंड ऑल में। तो वो पर्टिकुलर दिल्ली में होने तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर थे ही नहीं, एंड जो ऑलरेडी लैंडफिल्स है उसे एक्सकवेट करने में, उसे सेग्रीगेट करने में लेगेसी वेस्ट को, उसके भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी दिल्ली में उतना है नहीं। एक ओखला साइड एक पर्टिकुलरली वेस्ट टू एनर्जी प्लांट खुला था, WT प्लांट, दैट बर्न्स द वेस्ट टू प्रोड्यूस एनर्जी, बट दैट इज ऑल्सो नॉट एफिशिएंट एंड इट कॉजेज अ लॉट. Particularly, they use the waste, they burn it. The thermal energy is used to produce electricity. They boil the water and use the steam to move a turbine and produce energy. So इससे प्रॉब्लम्स ये है कि जो वेस्ट होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू कोल. कैलोरीफिक वैल्यू Calorific value is the amount of energy that can be derived from burning a unit of fuel. So particularly coal is used in thermal power plants because coal से ज़्यादा calorific value मिलती है. It is a lot cleaner fuel as compared to waste. So वो दिक्कत थी, एंड उससे पॉल्यूशन भी होती है, एयर पॉल्यूशन, बिकॉज आप बर्न कर रहे हो और वो उतना एफिशिएंट है नहीं जो ओखला में ऑलरेडी. सो दैट वाज अ प्रॉब्लम. अच्छा, बाकी साइड्स पर क्यों नहीं लाए ओखला के बाद? पर्टिकुलरली एक लाइक हमने आर्टिकल पढ़ा था कि जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है उससे आसपास के लोग नॉट सेटिस्फाइड है, जो ओखला के आसपास के जो रेसिडेंट्स है. क्यों? बिकॉज उससे लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस होती है. क्योंकि दे आर बर्निंग इट, स्मोक रिड्यूस होती है, एंड ओवरऑल द इट्स नॉट एफिशिएंट. द अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट इज कन्वर्टेड टू एनर्जी दैट इज नॉट सब्सटेंशियल, और उतना नहीं जो उसे स्केल कर पाए. लाइक दैट्स नॉट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द वेस्ट, पर्टिकुलरली इन दिल्ली. स्मोक के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं था? पर्टिकुलरली ऐसा कोई सॉल्यूशन था नहीं स्मोक के लिए, एंड द स्मोक इज ऑल्सो हजार्डस बिकॉज दे आर यूजिंग प्लास्टिक्स एंड ऑल टू बर्न एंड प्रोड्यूस द हीट. सो यूजुअली जो लैंडफिल्स होते हैं वो शहर से बहुत दूर होते हैं, पर दिल्ली में इतना पॉपुलेशन ज़्यादा है, एंड जो ये लैंडफिल्स इतने पहले से है कि इनके आसपास ऑलरेडी बहुत कम्युनिटी, लाइक ओखला के आसपास बहुत कम्युनिटी है. पर्टिकुलरली आई वेंट टू भलसवा लैंडफिल फॉर अ प्रोजेक्ट, और मैंने वहाँ विटनेस किया कि इट्स राइट इन द मिडिल ऑफ द कम्युनिटी. तो वहाँ पर जब स्मोक एंड जब फायर्स होती है, जब बर्न करते हो चीज़ों को, तो स्मोक आसपास की कम्युनिटी को बहुत इम्पैक्ट करती है. वहाँ पर जाके जो एनालिसिस किया होगा, क्या पता चला उससे? पर्टिकुलरली ये हमने देखा कि वहाँ आसपास बहुत सारी कम्युनिटी है जो लैंडफिल में डिपेंडेंट है. दे रैक पिक इन द लैंडफिल, एंड रैक पिकर्स बहुत हैं पर्टिकुलरली उसमें. एंड आसपास के लोगों से हमने पूछा भी था एक प्रोजेक्ट के लिए, तो वो बोल रहे थे कि ड्यूरिंग रेनी सीजन बहुत इशू होती है, फाउल स्मेल आती है, एंड ओवरऑल पॉल्यूशन भी बहुत हो जाती है, एंड डिजीजेस भी बहुत है, स्किन डिजीज पर्टिकुलरली. ओके, तो स्किन डिजीज के लिए कोई सोल्यूशन बन सकता है? स्किन डिजीजेस के लिए एज सच कोई सोल्यूशन लाइक पॉलिसी वाइज तो नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही सोल्यूशन है कि आप लैंडफिल्स को हटा दो. बिकॉज जब तक आप सोर्स को नहीं हटाओगे जो डिजीज का है, तब तक आप उसको ये नहीं कर सकते हो. इट्स सिमिलर टू लाइक मलेरिया. अगर आप मलेरिया से कोप अप करना है तो आप मॉस्किटोज को पनपने ना दो. इट्स सिमिलर टू दैट. तो स्किन डिजीज के लिए हुआ मोर प्रोन या फिर ऐसा कुछ रिसर्च किया था? Not particularly that aspect of it, but yeah, children are pretty prone because they lack the immunity and are susceptible to it. एंड वर्कर्स या फिर पूरी कम्युनिटी में फैल सकता है वो, या फिर सिर्फ वर्कर्स? लाइक पूरी कम्युनिटी में फैल सकता है जो आसपास है. अच्छा, ये हुआ था दिल्ली में ओखला वाले में? हाँ, लाइक हमने इंटरव्यूज लिए थे वहाँ के लोगों से, तो दे सेड कि हाँ स्किन डिजीज होती है. ओके, तो व्हाट वर योर सॉल्यूशंस देन? So particularly for the 3-year plan, our solutions were in two phases. Particularly to reduce the already legacy waste that is present in the landfills, and on the side by side जो daily waste dump हो रही है उसे minimize करने का. ओके, लेगेसी वेस्ट के अंदर क्या क्या थे? So in the case we were given a pie chart कि legacy waste के compositions क्या है. Around 72% of it was fine fraction. Fine fraction क्या? Fine fraction is basically loose soil-like content
फॉर्म ऑफ वो जब वेस्ट ये ये डिकम्पोज होता है तो पर्टिकुलरली उससे एक फाइन सॉइल लाइक मल्च लाइक सब्सटेंस बनता है, उसे फाइन फ्रैक्शन बोलते हैं. इट हैज अ लॉट ऑफ क्ले कंटेंट इन इट. सो 72% ऑफ फाइन फ्रैक्शन था. अदर part was stone construction waste, lot of concrete waste, stones and all, and around 10% was combustible and non-biodegradable like plastics, paper, cardboard now. Because जो legacy waste है उसमें जो biodegradable component होता है like food waste, plants or other thing, वो already decompose हो जाता है because वो legacy waste around 10 से 20 years से है वो landfill में. ओके. एंड सेकंड टाइप के जो वेस्ट थे उसके लिए सॉल्यूशंस क्या थे? सो सेकंड टाइप का था जो डेली वेस्ट जनरेट हो रहा है हाउस होल्ड से, जो 50% लाइक मैंने मेंशन किया कि 50% वेस्ट डेली डंप हो रहा है. तो उन पर्टिकुलरली 50% वेस्ट का ये था कि वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स. लाइक मैंने मेंशन किया कि हाउस होल्ड में लोग एक डस्टबिन यूज करते हैं, उसी में सारा वेस्ट डालते हैं एंड एंड में एमसीडी वाले उससे क्लियर करके ले जाते हैं. उससे दिक्कत क्या होता है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब मिक्स हो जाता है एंड देन उसका फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो पाता. सो वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स है कि सेपरेट डस्टबिन सेटअप करें लोग हाउस होल्ड में, इवन इन पब्लिक प्लेसेस. पर्टिकुलर था कि हाउस होल्ड के लिए 2 डस्टबिन एंड पब्लिक प्लेसेस के लिए अराउंड 4 डस्टबिन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट. फॉर हाउस होल्ड देयर वाज ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट. ड्राई वेस्ट में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी आ जाते हैं, वेट वेस्ट में फूड वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, पेपर, कार्डबोर्ड एंड ऑल. इसके लिए तो काफ़ी मैन पावर चाहिए होगा ना एग्जीक्यूट करवाने के लिए हाउस होल्ड्स जा जाकर. हाँ, पर्टिकुलरली ये था कि एमसीडी इवन इन ओवरऑल इंडिया में गवर्नमेंट ये चीज़ को प्रमोट कर रही है वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स. बट इट्स की लोग का मेंटालिटी नहीं है, लोग उतना टाइम डेडिकेट नहीं करते, यूजुअली हरी में एक ही डस्टबिन यूज करते. इफ देयर आर 100 हाउस होल्ड्स इन दिल्ली, लेट्स अज्यूम इन अ कम्युनिटी, उसमें से कितने लोग हाउस होल्ड में वेस्ट सेग्रीगेट कर रहे हैं? So it's very less, around 20 to 30% है जो proper waste segregation को follow करते हैं. And that is also in particularly affluent communities like apartments हो गए, जहाँ पर एक proper waste disposal system बना हुआ है. जो normal household है, particularly middle income level group and low income level group, वहाँ even in restaurants and all waste segregation पे उतना कोई ध्यान नहीं दे पाता. सो उससे इशू होती है. जो बायोडिग्रेडेबल है उसे फर्दर मैन्युअल प्रोडक्शन एंड कंपोस्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं लोग. नॉन बायोडिग्रेडेबल को फिर सेग्रीगेट कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को अलग, पेपर वेस्ट को अलग, फिर उसका अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट होती है. बट जब मिक्स हो जाता है तो उसका कुछ नहीं हो सकता. ओके. एंड सेकंड टाइप का जो था उसके लिए क्या था? फॉर लेगेसी वेस्ट, या फॉर अ लेगेसी वेस्ट, like I mentioned, there are 72% fine fraction stones and all. So उसको अगर आप segregate कर लो तो उसके alternate uses आ सकते हैं. Stones के थे कि you can use it for construction. आप उसको reuse कर सकते हैं construction में. And another idea कि that I propose कि जो railway tracks होते हैं उसमें stones and grids होते हैं for the railway tracks. So the stones and grids जो आप यहाँ से segregate करोगे legacy waste को, that can be used in this process as well. And like I also forgot to mention कि like I mentioned that household में 2 डस्टबिन होना चाहिए, dry waste and wet waste. And for the public places we devise कि there should be 4 dustbin minimum. Because कैसे? Yeah, 4 की first to like wet waste and dry waste, like dry biodegradable waste. Second की there are a lot of electronic waste as well and biohazardous waste like medical waste as well. सो ये दोनों का भी सेग्रीगेशन ज़रूरी है. बिकॉज पर्टिकुलरली हमने इसे हाउस होल्ड में नहीं मेंशन किया बिकॉज हाउस होल्ड में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड लाइक बायोमेडिकल वेस्ट नहीं प्रोड्यूस होती है उतनी. सो दैट वर केप्ट फॉर पब्लिक प्लेसेस. ओके. इसके लिए फाइनेंशियल्स कुछ किए थे? या सो पर्टिकुलरली हमने देखा कि लाइक जो हमारा 3 ईयर रोड मैप है उसमें बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होने वाले थे एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर भी. सो हमने एमसीडी की जो बजटरी एलोकेशन होती है एक ईयर की, दैट वाज अराउंड 3000 समथिंग करोड़. सो हमने उसमें से डेडिकेट किया कि जो मशीनरीज हम यूज़ करेंगे लाइक डंपस्टर ट्रक्स, कंपोस्टर्स
श्रेडर्स एंड कॉम्पैक्टर्स एंड ऑल, उसमें हमारा कितना एक्सपेंस लगेगा, कितना अमाउंट लगेगा, कितने नंबर ऑफ दोज मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड, एंड उसके अकॉर्डिंग हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बांटा एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बांटा. इन ऑपरेटिंग वी ऑल्सो इंक्लूडेड द वेजेस एंड सैलरीज जो हमें एम्प्लॉयज को देंगे, फॉर एम्प्लॉयज फॉर द लेगेसी वेस्ट एज वेल एंड फॉर डेली वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन एज वेल. सो उससे हमने देखा कि within the budget that is allocated to MCD, without using the complete budget, like around 70% budget भी अगर इस प्रोजेक्ट को particularly dedicate करें तो that will be sufficient. So हमने उसी में एक्सेल में उससे फाइनेंशियल्स की एक लिस्ट बनाई थी. ओके, सेकेंड ईयर के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस थे पॉलिसी? So particularly for the first year, like I said कि first year would be focused on waste segregation at source, कि जो डेली वेस्ट डंप हो रहे हैं उसे कम करने का, और फर्स्ट है में साइड बाय साइड जो मशीनरीज एंड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे एक्चुअली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करने, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में टाइम लगेगा, जो मशीनरीज है उसे एक्वायर करके रनिंग कंडीशन में लाने में भी टाइम लगेगा सेटअप में, तो वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा. पर्टिकुलरली फॉर द सेकेंड ईयर आवर फोकस वॉज मोर ऑन द लेगेसी वेस्ट. तो सेकेंड ईयर वॉज मोस्टली फोकस की जो लेगेसी वेस्ट है उसे रिड्यूस करना, उससे एक्सकवेट करना, उससे सेग्रीगेट करना, फाइन फ्रैक्शंस को अलग, स्टोन्स को अलग, जो कंबस्टेबल है उसको अलग, और जो ईच ऑफ दिस वेस्ट है उसका क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग. पर्टिकुलरली हमारा आइडिया था कि सिंस जो भलसवा, गाजीपुर और ओखला लैंडफिल्स है दे आर वेरी क्लोज टू कम्युनिटीज. तो अगर वहाँ पर आप इतने हैवी मशीनरीज को यूज़ करोगे, अगर आप प्लांट सेटअप करोगे सेग्रीगेशन उसका, तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर द कम्युनिटी, और वो इम्पैक्ट उसे एक्चुअली इम्प्लीकेट करना मुश्किल होगा. इसमें आइडिया था कि एक सेपरेट यूनिट स्टैब्लिश करना शहर से थोड़ा दूर. तो शहर से दूर यहाँ पे दिल्ली में हो सकता है, बट लाइक पर्टिकुलर इन द सदर्न रीजन, गुड़गांव के आगे माने से दैट इज अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज है, वहाँ पे बहुत सारे लैंड, और वो थोड़ा कम्युनिटी से थोड़ा लाइक मेन दिल्ली पॉपुलेशन से हल्का आइसोलेटेड है. वहाँ पर एक प्लांट सेटअप करना जहाँ पर जो लेगेसी वेस्ट है यहाँ एक्सकवेट करके उसे ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करना, बिकॉज अ लॉट ऑफ हैवी मशीनरी नीड्स टू बी यूज्ड, क्योंकि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट है इन तीनों लैंडफिल्स में. सो ट्रांसपोर्ट करके जो 72% लाइक फाइन फ्रैक्शन है, लाइक आई मेंशन इट्स अ लूज सॉइल एंड क्ले लाइक मटेरियल, इसका यूज कर सकते हैं ब्रिक्स बनाने में. द ब्रिक्स विल नॉट बी ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी बट दे कैन बी यूज्ड टू बिल्ड स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर्स. द क्ले यूसेस से उससे क्ले बना सकते हैं, दैट कैन बी यूज इन अदर पर्पसेस, लाइक क्ले के बहुत यूजेस है. पर्टिकुलरली ऑल्सो दैट कैन बी फर्दर यूज्ड इन मेकिंग वॉल्स एंड ऑल, लाइक जो फेंसेस होती है उसके लिए शॉर्ट वॉल्स बनानी पड़ती है, उसके लिए यूज कर सकते हैं. स्टोन्स का लाइक आई मेंशन की जो रेलवे ट्रैक्स है उसमें यूज कर सकते हैं, एंड कंस्ट्रक्शन में लाइक सीमेंट मिक्स करके उसे यूज कर सकते हैं. सो दैट वाज फॉर स्टोन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट. एंड उससे जो नॉन कंबस्टेबल स्टोन से मेटालिक वेस्ट भी है, मेटल्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं एंड दे कैन बी मेल्टेड एंड स्मेल्टेड फॉर अदर पर्पसेस. ओके, थर्ड ईयर के लिए क्या था? या फॉर द थर्ड ईयर आवर मेन फोकस वाज कि जो लैंडफिल को क्लियर कर ली, जो लैंड बच गए उसका क्या यूज करना, क्योंकि लाइक आई मेंशन कि बहुत सारे रैग पिकर कम्युनिटीज भी डिपेंडेंट होती है लैंडफिल्स पे. फॉर द सेकेंड ईयर आई फॉरगॉट टू मेंशन कि एक लाइक आई मेंशन 20% कंबस्टेबल वेस्ट, 10% कंबस्टेबल वेस्ट भी है. सो फॉर द कंबस्टेबल वेस्ट बर्निंग वाज नॉट अ सॉल्यूशन. लाइक आई मेंशन कि अभी कंबस्टेबल वेस्ट को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बट आई थॉट कि दैट वुड नॉट बी अ वेरी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, लाइक आई मेंशन फॉर द कॉन्स ऑफ दैट. सो आवर आइडिया वाज कि जो कंबस्टेबल वेस्ट है उसमें से प्लास्टिक कंटेंट को यूज करके रोड्स में डाल सकते हैं. लाइक आपने सुना भी होगा कि पर्टिकुलरली प्लास्टिक को रोड्स में डाल के उसे फ्लैटन कर देते हैं ताकि उसके कोई लाइक दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ प्लास्टिक दैट कैन नॉट बी रिसाइकल और रिमोल्डेड. एंड कंबस्टेबल है मोस्टली प्लास्टिक वेस्ट एंड वही थे. सो दैट वाज अ सॉल्यूशन फॉर कंबस्टेबल वेस्ट. एंड जो लैंड लाइक फॉर द थर्ड ईयर जाके मेंशन जो लैंड क्लियर हो गया, सो पर्टिकुलरली वी मेंशन 4 स्ट्रैटेजीज जो ऑलरेडी क्लियर लैंड है उसके क्या यूज हो सकते हैं. द फर्स्ट प्रोसेस वुड बी टू डिटॉक्सिफाई द लैंड. लाइक आई मेंशन कि लीचेट प्रोड्यूस होता है, उससे ग्राउंड वाटर पोल्यूट होता है,
एंड जो सॉइल का टॉप लेयर है वो बहुत केमिकल्स एंड बायो हजार्डस वेस्ट से रेस्ट होता है, तो उसमें कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर नहीं हो सकता. यू कांट ग्रो, इवन पार्क भी नहीं बन सकता, उसमें घास भी नहीं होगी. सो उसकी डिटॉक्सिफाइंग एंड कैसे डिटॉक्सिफाइंग? सो डिटॉक्सिफाइंग का पर्टिकुलर प्रोसेस होता है कि सेपरेट केमिकल्स यूज होती है जो वो जो वेस्ट केमिकल्स को उसको नलीफाई कर देती है, उसकी इफेक्ट को नलीफाई कर देती है. इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है? पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर एज सच मशीनरी एंड ऑल तो रिक्वायर्ड नहीं है, बस द केमिकल्स एंड ऑल को स्प्रे करना रहता है लैंड पे. ओके. तो वो सोर्स करना पड़ता है. एंड बाकी फॉलोअप्स कुछ थे कि बाकी 2 साल में काम कैसे हुआ थर्ड ईयर के लिए? हाँ, तो लाइक थर्ड ईयर हमारा बेसिकली फॉलोअप पे ही था कि जो लैंड है उसको डिटॉक्सिफाई हो गया, वो स्ट्रेंथन हो गया, फिर वहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी को सर्व करे. लाइक मैंने मेंशन किया था कि वहाँ पर लो डिपेंडेंट है लैंडफिल पे. लैंडफिल चल के तो उन लोग लाइवलीहुड इम्पैक्ट हो, वो जब आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करोगे तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एज ए लेबरर्स एंड ऑल. वहाँ पर मैं लाइक मेंशन किया कि स्किन डिजीज है, पॉल्यूशन से बहुत प्रॉब्लम होती है. हॉस्पिटल्स आप खोलोगे तो आप वहाँ की लोकल कम्युनिटी को हेल्थ कॉन्शियस वे में इम्पैक्ट करोगे. बट ये तो क्योर है ना एक तरीके का, कोई ऐसा नहीं है कि इसको रोक सकते हैं, स्किन डिजीज हो ही नहीं. लाइक आई मेंशन कि जो सोर्स अगर हट गया, लाइक 3 इयर्स में लैंडफिल वहाँ से हट गया, न्यू वेस्ट डंप नहीं हो रही है, तो जब सोर्स हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली विद टाइम वो डिजीजेस कम हो जाएगी. बिकॉज ऐसे नहीं कि वो डिजीजेस जेनेटिक नहीं है, बेसिकली ट्रांसफर हो जाती है पर्सन टू पर्सन. सो डर्मेटाइटिस पर्टिकुलरली, सो स्किन इन्फेक्शन एंड ऑल, तो जब सोर्स हट जाएगा तो वो इश्यूज भी नहीं आएगी. ओके. एंड हॉस्पिटल के साथ हमारा एक और प्लान था कि वहाँ की कम्युनिटी को जब आप लाइवलीहुड प्रोवाइड कर दो, वहाँ की कम्युनिटी को आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दो जो आप उन्हें डेवलप करने में हेल्प करे. सो इन द फ्यूचर ईयर्स ये 3 ईयर रोड मैप यहाँ पे फिनिश ना हो, इन कमिंग ईयर्स ऑल्सो अपना वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम दिल्ली का इतना रोबस्ट हो जाए कि फर्दर लैंडफिल्स बनने का सिचुएशन ना आए. इंडिया में सबसे अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम किसका है? Like recently, while researching for this case, I got a case like I guess in Tamil Nadu or some certain region of India, similar problem was there कि waste management है, landfill बहुत है, उसे flatten करना. So they actually implemented it in 2 years, and they are doing pretty good. Okay. ये सारे solutions जो आपने पॉलिसी में दिए वो हो चुके हैं कहीं पे, चेन्नई या फिर तमिलनाडु या whatever कहीं पे? हाँ, like I mentioned कि तमिलनाडु में कोई सिटी था, I'm not sure if it is चेन्नई or not. वहाँ पर एक्चुअली 2 साल में इम्प्लीमेंट हो गया था, लाइक दे फ्लैटन द लैंडफिल्स there. ओके. वहाँ पे स्किन डिजीज ये सब अगर कोई रिसर्च बेस्ड स्टडी हो, हुए थे कम? हाँ. डिड इट हेल्प? अच्छा. ओके, गुड. लाइक जो लैंडफिल्स में होने वाले स्किन डिजीजेस एंड जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो एविडेंट है, वो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सब जगह होते हैं. लाइक इट्स अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि मैंने जब एक प्रोजेक्ट लेकर वेंट टू भलसवा, वहाँ लोगों से पूछा तो मैक्सिमम लोग इस चीज़ को कंप्लेन कर रहे थे कि स्किन प्रॉब्लम्स होती है. अच्छा. देन अबाउट द फाइनल राउंड प्रेजेंटेशन, उसमें कौन-कौन से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जजेस से? पर्टिकुलरली फॉर द फाइनल राउंड आई वाज प्रीटी स्केयर्ड, एंड हमारे से पहले जितने भी टीम्स आए थे देयर सॉल्यूशन वाज प्रीटी गुड, बट one thing that made us stood apart from our team, our competitors was that कि even judges pointed out जो बाकी टीम से सॉल्यूशन थे वो बहुत टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव थे. They were talking about various solution that requires a lot of technology. They were somewhere even talking about something AI management and all. Why wasn't it good? वो तो अच्छी है. Like it is good, but you have to understand कि इंडिया ऐसे कंट्री में implementing such big technologies in a short span of 3 years is pretty difficult. Okay. तो जजेस ने उनको ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे क्या? Yeah, they did ask questions from them कि आप implement कर रहे हो, कैसे implement कर रहे हो. Most of them gave examples of European countries कि वहाँ भी ये सब technologies यूज हो रही है particularly waste management में.
बट एट द एंड की बात वही है कि इंडिया को कोई दूसरे कंट्री से कंपेयर करना मुश्किल है. इंडिया में जिस टाइप से वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मैनेज हो रहा है, जितना पॉपुलेशन है पर्टिकुलर दिल्ली में, वो बहुत अलग है. उसके डेमोग्राफिक्स बहुत अलग है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूरोपियन कंट्रीज. So that's what made you stand out from others. Yeah, particular. And one more thing कि like landfill scare होने के बाद भी our last year, like third year, was focused more on development and re-establishing the community there and the reuse of the land. That was also a thing that was not covered by a lot of teams. Okay. So I guess that's it. Very insightful conversation. Thank you so much for coming here, Uday. I'm glad to be. Thank you.